الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء کرام کے ماننے والوں شہداء ملت کے طلبگاروں انیس الغربین مراد المشتاقین صبح کائنات کی شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر دائی حلیمہ کے حلیم دو عالم کے مالک و مختار شافع روز شمار ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار محربار میں درود پاک کا ہدیہ چھاور پیش کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم برمنے بے سرو ساما مدد قبلہ عبی مدد کعبہ ایمہ مدد بگر دابے بلا استاد مشتی ضعیفان شکستارات مشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی محترم سامعین میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا آپ پرمز تقریر حضرت حافظ القاری مولانا سہیل صاحب سے سماعت کریں گے بس چند منٹ اس ناچیز کی بھی حاضری ہو جائے اور غلام غوث و خواجہ اس ناچیز کا بھی نام درج ہو جائے اس بنسبت سے میں آپ حضرات کے بیچ کچھ دیر کے لیے آیا ہوں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں منقبت کا اشعار لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اور لیا ملک یہ آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دبے جس کے حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس کے حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا حضرات محترم یہ ماہ مبارک ربیع الغوث کا مہینہ چل رہا ہے یعنی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی 7 نومبر کو 11ویں شریف ہے اسی کی نسبت سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا پوری دنیا کے لوگ سرکار غوث اعظم کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے حضرات
हजरात मोहतरम वो सरकार गौसे पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम तमाम लोगों पर लाख लाख शुक्र एहसान है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से कब्ल लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कमो बेश 1 लाख या 2 लाख अंबिया किराम इस दुनिया में मबरूस फरमाया, इस दुनिया में भेजा। जब हम सबके आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुस्तफा मुहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, जब मेरे आका की आमद हुई, मेरे आका की आमद के बाद नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब न कोई रसूल तशरीफ लाएगा, मगर अब लोगों की हिदायत का काम कौन करेगा, लोगों की रहनुमाई का काम कौन करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम काम वो अपने 2 घरों में जमात तकसीम कर दिया। उनमें से एक घरों उलमाए किराम की जमात है और दूसरा घरों औलियाए किराम की जमात है। सुबह क़यामत तक उलमाए किराम पैदा होते रहेंगे और सुबह क़यामत तक जब से दुनिया कायम है, सुबह क़यामत तक हम औलियाए किराम आते रहेंगे। हज़रात मोहतरम इसीलिए अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब न कोई रसूल तशरीफ लाएगा, अब लोगों की हिदायत रहनुमाई का काम उलमाए किराम करेंगे, रसूल उलमाए किराम करेंगे, औलियाए एज़ाम करेंगे। उन्हीं औलियाओं में से एक मशहूर मारूफ औलिया सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का नाम है, वो सरकार गौसे आज़म है। सरकार गौसे का कितना ऊंचा मकाम है, सरकार गौसे आज़म को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला मातरजाद वली में, मां के पेट में, मां के शिकम में सरकार गौसे आज़म ने किसी रवायत में आया है कि 15 पारे का हाफिज़ कुरान होकर पैदा हुआ। किसी किताबों में आया है, किसी किताबों रवायतों में आया है सरकार गौसे आज़म अपनी मां के पेट में रह करके 18 पारे का हाफिज़ कुरान बनाकर दुनिया में तशरीफ लाए। वो गौसे आज़म है, मातरजाद वली है, मां के पेट में वली है। जब दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार गौसे आज़म की आमद भी नहीं हुई थी, सरकार गौसे आज़म की विलादत भी नहीं हुई थी। उससे पहले बहुत से औलियाए किराम सरकार गौसे आज़म की आमद की बशारत दे रहे थे, सरकार गौसे आज़म की आमद की खुशखबरी सुना रहे थे। हज़रात मोहतरम हज़रत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहर जिलान में यानी 771 हालिमा 471 हिजरी में शहर जिलान में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए और आपके वालिद गिरामी हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त और आपके नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और आपकी मां उम्मुल खैर फातिमा और आपकी फूफी हजरत आयशा जो बहुत बड़ी आबिदा जाहिदा खातून थी। हज़रात मोहतरम जब मां आबिदा होती है, जब मां जाहिदा होती है, उसके शिकम से गौसे आज़म पैदा होते हैं। जब मां मुत्तकी परहेज़गार होती है तो उसके शिकम से खालिद आवाज़ पैदा होते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सरकार गौसे आज़म, आइए मैं आपको बताता चलूं कि सरकार गौसे आज़म पैदा हुए। पैदा होने के बाद सरकार गौसे आज़म का बचपना का जमाना है, सरकार गौसे आज़म के बचपने के जमाना में सरकार गौसे आज़म के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में वहीं पर सरकार गौसे आज़म भी रहा करते थे, उन्हीं की खानकाह में रहा करते थे। हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में एक औरत अपने गोद में बच्चे को लेकर के सरकार हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमी की खानकाह में आए। दुआ कराने की घर से औरत की बच्ची की बहुत तबीयत खराब थी, उस वजह से दुआ कराने की घर से हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में वो औरत अपने गोद में बच्चे को लेकर के हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में आ रही थी कि रास्ते में उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। रास्ते में उसके बच्चे का इंतकाल हो जाता है, वो बच्चा रास्ता ही में मर जाता है। वो दुखी औरत, वो गरीब, वो औरत कहती है कि हजरत अब्दुल्ला सोमी ये मेरे मरहूम शौहर की अमानत है, ये मेरे मरहूम शौहर की
हजरत सैयद अब्दुल्ला शोमी मुराकबा करते थे, लौह महफूज को देख लेते हैं, सातों आसमान सातों जमीन को ऊपर से रख करके सातों आसमान के ऊपर लौह महफूज को देख लेते हैं। और उसके बाद लौह महफूज को देखने के बाद उस बच्चे के आगे, उस बच्चे के नाम के आगे यूं लिखा हुआ था कि उसकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है। क्या लिखा हुआ था? उसकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला शोमी उस औरत से कहते थे, बूढ़ी माँ सब्र कर ले, सब्र कर ले, अब उस बच्चे की जिंदगी बाकी नहीं है, अब वो बच्चा दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। इतना सुनने के बाद वो औरत और चिल्लाती हुई अब्दुल्ला शोमी की खानकाह से निकल रही थी। रास्ते में बचपने का जमाना था, सरकारें गौसे आजम खेल रहे थे, सरकारें गौसे आजम खेल रहे थे। जब सरकारें गौसे आजम की नजर उस बूढ़ी माँ पर पड़ती है, उस बूढ़ी बुढ़ियारी माँ पर पड़ती है, तो सरकारें गौसे आजम उस बूढ़ी माँ से फरमाते, ऐ माँ क्या हुई, क्या माजरा है? अपने नाना की बारगाह में आई थी, अपने दुआ कराने के लिए, खुशी होने के लिए आई थी, तुम नाराज होकर के जा रही है। औरत कहती है, ऐ बच्चे, मैं तुम्हारे नाना की बारगाह में अपने पत्नी की जिंदगी के लिए आई थी, अपने मेरे बच्चे के गोद में इंतकाल हो गया, उसकी जिंदगी के दुआ कराने आई थी। सरकारें गौसे आजम फरमाते थी, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, ऐ बूढ़ी माँ, आप देख लो, आपके गोद में बच्चा जिंदा है, आपके गोद में बच्चा मुस्कुरा रहा है। सुनना था तब वो बूढ़ी माँ अपने बच्चे के गोद में मुस्कुराते हुए देख करके खुशी के मारे उछल पड़ती है। जब इतना सुनने के बाद सरकारें गौसे आजम बचपने के जमाने में मुर्दे को जिंदा कर दिया। इतना सुनने के बाद सरकारें गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला शोमी अपने नवासे को तवज्जो करते, ऐ मेरे नवासे, मैं तेरे तवज्जो नहीं पहुंच सकता, और अपने नवासे को तब्दील करने के लिए, अपने नवासे को डराने के लिए एक लाठी के सहारे अपने नवासे को दौड़ाने लगे, अपने नवासे को पीछे करने लगे। सरकारें गौसे आजम भागते एक कब्रिस्तान तरफ चले गए और दूसरे कब्रिस्तान में पहुंचे, कहते हैं मुर्दों, ये क्या रहे, मुझे बचा दो, मेरे नाना जान मुझे मारने के लिए आ रहे। इतना कहना था, कब्रिस्तान के साथ उठ कर खड़े हो जाते हैं, सरकारें गौसे आजम के दीवार बन जाते हैं। ये सरकारें गौसे आजम के बचपन का करामत, जो बचपन का आलम है, जो खेलने का आलम है, उसी आलम में अपने नाना जान की बारगाह में उस औरत उस बच्चे को जिंदा कर देते हैं। उसी खुशी में वो औरत उछल करके आती है, सरकारें गौसे आजम को तब्दील करने के लिए उनके नाना जान पीछे दौड़ाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं समझ गया, मैं तुम्हारे मर्तबे को नहीं उठा सकता। सरकारें आला हसन फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है, आला तेरा ऊंचे के सरों से है, कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया अमल देखने आंखें वो है जलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे मिलाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे मिलाता नहीं कुत्ता तेरा, कसम दे दे के खिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा सरकारें गौसे आजम अपने दिल में इरादा कर लिया, एक बात आपके सामने पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। सरकारें गौसे आजम एक मर्तबा अपने दिल में इरादा कर लिया कि जब तक मुझे अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से खिलाएगा उस तक मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा। अपने दिल का इरादा कर लिया, जब तक मुझे अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा। इस तरह कई जमाने गुजर गए, कई साल गुजर गए, सरकारें गौसे आजम कुछ खाए नहीं, कुछ भी नहीं। हजरत अबू सईद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ, पता चला तो खाने सरकारें गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं, सरकारें गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं, खाना सरकारें गौसे आजम की बारगाह में पेश करते हैं, कहते हैं आप इस खाने को तनाउल करवा लीजिए। सरकारें गौसे आजम फरमाते थे, मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। हजरत अबू सईद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, अल्लाह तबारक खाना मैं अपने लिए, मैं अपने तरफ से लेकर आया हूँ, बल्कि ये खाना अल्लाह रब्बुल इज्जत
आज़म ने उस खाने को तनाउल फरमाया, वो खाना शुरू कर दिया। हज़रात मोहतरम सरकार गौस आज़म इसी की तर्जुमानी करते हुए बरेली के ताज़दार इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कसम दे दे के खिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और सारे आफ्ताब जहाँ करते थे काबे का तवाफ, सारे आफ्ताब जहाँ करते थे काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। हज़रात मोहतरम ऐसे सरकार गौस आज़म की बहुत सी करामतें हैं। सरकार गौस आज़म का करामत को बयान करना चाहे तो रातें गुजर जाएगी, महीनों गुजर जाएगी, मगर सरकार गौस आज़म का महत्व, उसकी करामात को, उसकी मनाक़िबात को हम बयान नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम सरकार गौस आज़म के साथ सरकार गौस आज़म का इतना ऊंचा मकाम है, सरकार गौस आज़म के बारे में क्या करना। इसलिए सरकार गौस आज़म के बारे में अगर पूछना है तो आप सरकार आला हज़रत के तर्जुमानी पूछिए। सरकार गौस पाक को मनाक़िब को जानना है, उसके रुतबे को समझना है तो आप बड़े तादाद से पूछिए कि सरकार गौस आज़म का मकाम क्या है, सरकार गौस आज़म का रुतबा क्या है। सरकार गौस आज़म, वो सरकार गौस आज़म है जिसकी माँ, अपनी माँ के पेट में जिसकी माँ आबिदा ज़ाहिदा खातून हो, उसका बेटा भी अपने वक्त का वली पैदा होता है, अपने वक्त का गौस पैदा होता है। हज़रात मोहतरम मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। उससे बोलने में, आप सामईन को सुनने में किसी किस्म की लफ्ज़ और सबर गलती खामी हो गया, मैं परवरदिगार की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। मेरे साथ मिल करके पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। कलमा शरीफ में मिल करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि पेश हक़ खुदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप लेते जाएंगे, हमको फंसाते जाएंगे, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को भूलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के धूल फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है सिर्फ उनका सुनाते जाएंगे। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, दोनों आला दुल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुके पर डूबे न डूबा हमारा नबी। और वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भरा क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औले अमल तेरे माथे वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फूल के शेर चमन फूल पूरी शाद रहे, बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम। अब मेरे बाग